ایک ایسا شہزادہ جس نے عورتوں سے نفرت کی قسم کھا رکھی تھی، اور ایک ایسی شہزادی جسے پوری دنیا دیوانی سمجھتی تھی۔ مگر پھر ایک رات ان کی زندگیوں میں کچھ ایسا ہوا جس نے تقدیر ہی بدل دی۔ آخر وہ کون سا راز تھا جس نے ایک ہی رات میں دو انجان لوگوں کو ایک دوسرے کا دیوانہ بنا دیا؟ جانیے آج کی اس حیرت انگیز کہانی۔ بحیرہ فارس سے 20-25 روز کی مسافت پر ایک جزیرہ ہے۔ تاریخ میں اس کا نام چندان لکھا ہے۔ وہاں کے بادشاہ کا نام شاہ زمان تھا۔ رعایا شاد خدا کی دی ہوئی ہر نعمت موجود تھی۔ بادشاہ کے عدل و انصاف کا چرچا رعایا کے ساتھ عام تھا، اور دور دور تک یہ مشہور تھا۔ دنیا جہان کے مصیبت زدہ لوگ وہاں آتے اور عادل شاہ کے زیر سایہ آرام و راحت حاصل کرتے۔ حکم یہ تھا کہ کسی ادنیز غریب کو بھی تنگ نہ کیا جائے۔ یہ سب ہوتے ہوئے بھی بادشاہ کے دل میں ایک خلش تھی جو ہر وقت اسے پریشان رکھتی تھی، یعنی کوئی اولاد نہ تھی جو وارث تخت و تاج ہوتی۔ جب بادشاہ کا رنج و غم بڑھا تو دایان سلطنت اور وزراء نے عرض کیا کہ آپ فقراء اور درویشوں کی خدمت کیجیے، ممکن ہے کسی کامل کی توجہ سے آپ کی تمنا پوری ہو جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے ہر جگہ لنگر جاری کر دیے، سرائیں بنوا دیں، کنویں کھدوا دیے تاکہ کسی مسافر اور غریب کو تکلیف نہ ہو۔ جہاں کسی فقیر درویش کی اطلاع ملتی جاتا اور دعا کے لیے عرض کرتا۔ آخر ایک دن بارگاہ خداوندی میں اس کے اعمال قبول ہو گئے۔ بادشاہ کو بیگم نے مژدہ سنایا کہ وہ امید سے ہیں۔ بادشاہ کو بے حد مسرت ہوئی اور اس دن کا انتظار کرنے لگا جب وہ وارث تخت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ 9 ماہ گزرنے کے بعد بادشاہ کے یہاں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکا پیدا ہوا۔ خزانوں کے منہ کھول دیے گئے اور غرباء و فقراء کو اتنا دیا کہ مالا مال ہو گئے۔ مہینوں ملک میں جشن و مسرت رہا۔ بادشاہ ہر وقت خدا عز و جل کا شکر ادا کرتا کہ اس کی سب سے بڑی تمنا پوری ہو گئی، اور شہزادے کا نام اس کے حسن و صورت کی مناسبت سے قمر الزمان رکھا گیا۔ جب شہزادے نے ہوش سنبھالا تو ہر فن کے استاد مقرر کر دیے گئے جو شہزادے کو تعلیم و تربیت دیتے تھے۔ 15-16 سال کی عمر میں قمر الزمان تحصیل علوم و فنون سے فارغ ہو گیا۔ استادوں کو بے حد انعام و اکرام دیا گیا۔ بادشاہ کو اب اس کی شادی کی فکر ہوئی، چنانچہ اس نے قمر الزمان سے ذکر کیا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ قبلہ کعبہ، اس سے تو مجھے معاف ہی فرمائیے۔ بادشاہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ کیوں؟ شہزادے نے عرض کیا کہ میں نے عورتوں کی بے وفائی اور بد کرداری کے واقعات پڑھے ہیں، اور میں عورت ذات سے بدگمان ہو گیا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ ماں کے سوا کوئی اور عورت میری زندگی میں داخل ہو۔ بادشاہ کو سن کر بہت ملال ہوا، لیکن اس نے سوچا کہ ابھی نو عمر ہے، کتابی علم کا طبیعت پر اثر ہے، کچھ دنوں میں خود ہی درست ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، بیٹا، تمہارا جواب میرے منشا کے خلاف ہے، لیکن میں تمہیں 1 سال کی مہلت دیتا ہوں، اس مسئلے پر مزید غور کر لو۔ سال بھر گزر گیا۔ بادشاہ نے کوس دربار بلا کر دریافت کیا کہ شادی کے متعلق اب تمہاری کیا رائے ہے؟ قمر الزمان نے عرض کیا، وہی جو پہلے تھی، بلکہ اس عرصہ میں میں نے جو مطالعہ کیا ہے اس نے میری رائے کو اور قوی کر دیا ہے۔ بادشاہ نے شہزادے کے انکار کو گستاخی پر محمول کیا اور کہا کہ کوئی تادیب کی جائے، لیکن وزیر اعظم نے عرض کیا کہ آپ اس کو 1 سال سوچنے کے لیے مزید دیجیے تاکہ یہ خوب سمجھ لے۔ یقیناً شہزادے کا مطلب عدول حکمی نہیں ہے، بلکہ اس رائے کا اظہار ہے کہ جو کسی وجہ سے انہوں نے قائم کر لی ہے۔ وزیر اعظم کی سفارش پر 1 سال اور غور کرنے کی مہلت دے دی گئی، لیکن یہ سال بھی گزر گیا اور قمر الزمان اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا اور شہزادے کو ایک پرانے افتادہ مکان میں قید کر دیا۔ یہ مکان مدت سے بند تھا۔ اس کے متعلق طرح طرح کی افواہیں بھی مشہور تھیں، جن میں اصلیت بھی تھی، کیونکہ اس مکان میں میمون پری رہنے لگی تھی۔ جس زمانہ میں قمر الزمان کو قید کیا گیا وہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئی تو خلاف معمول مکان میں روشنی دیکھ کر متعجب ہوئی اور اس حصے میں پہنچی جہاں قمر الزمان قید تھا۔ اس وقت نصف شب گزر چکی تھی اور شہزادہ محو خواب تھا۔ جیسے ہی میمون پری کی شہزادے پر نظر پڑی، اس کا حسن جمال دیکھ کر محو حیرت ہو گئی۔ پھر آگے بڑھی اور قمر الزمان کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا اور دل میں کہنے لگی کہ یہ تو بہت خوبصورت بلا ہے، میں اس سے ضرور دوستی پیدا کروں گی۔ اس لیے شہزادے کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ آہستہ سے چادر اوڑھ کر کسی کام سے آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ راستے میں ایک جن آتا ہوا ملا۔ پری نے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ جن نے کہا، چین سے آ رہا ہوں۔ وہاں شاہ چین کی لڑکی کو دیکھا ہے، کہتا ہوں ایسی صاحب جمال عورت شاید روئے زمین پر نہیں ہوگی، اب تک دید کی تمنا دل سے محو نہیں ہوئی۔
परी ने कहा, ऐसा ही होगा, लेकिन मैंने आज एक ऐसा खुश शक्ल नौजवान देखा है कि अगर तुम उसको देख लो तो अपनी शहजादी को भूल जाओगे। जिन ने कहा कि तुम चैन की शहजादी देखो तो मालूम हो गया इंसान और क्या परी कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन वो बेचारी आजकल कैद में है, क्योंकि शाह चैन उसकी शादी करना चाहता है, मगर वो बराबर इनकार कर रही है और कहती है, मर्द बड़ा बेवफा और हरजाई होता है, मैं कभी भी इसको अपना शरीक नहीं बनाऊंगी। परी ने कहा, तुम खामखा अपनी शहजादी की तारीफ किए जा रहे हो। इसका फैसला इस तरह हो सकता है कि शहजादी को गहरी नींद सुलाकर ले आओ और मेरे शहजादे के बराबर लटाकर मवाजना करो। इस वक्त मालूम हो जाएगा कि कौन ज्यादा हसीन है। जिन ने कहा, मंजूर, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि तुम शर्त हार जाओगी। फिर जिन उठकर वापस चला गया और जरा सी देर में शहजादी को लेकर उस मकान में आ गया जहाँ कमरुज़्ज़मान सो रहा था। जिन ने भी शहजादे को देखा और आपस में बहस करने लगे। परी कहती कमरुज़्ज़मान ज्यादा खूबसूरत है, मगर जिन कहता शहजादी। लेकिन हकीकत ये थी कि वो दोनों किसी को भी एक दूसरे पर तरजीह देने के काबिल नहीं थे। आखिर परी ने जमीन पर ठोकर मारी। उसी वक्त जमीन शक हुई और एक लंगड़ा कबड़ा जिन बाहर निकला, जिनके सर पर 6 सींग थे, और परी से कहने लगा, क्या हुक्म है? परी ने कहा कि तुम इंसाफ करो कि शहजादी और शहजादे में से ज्यादा खूबसूरत कौन है? लंगड़े जिन ने कहा, इनको बराबर लुटा दो ताकि आसानी से मुकाबला हो सके। चुनाचे एक ही प्लिंग पर दोनों को लुटा दिया, मगर फिर भी वो मुकाबला ना कर सका। मजबूर होकर कहने लगा, यूं तो कोई नतीजा जाहिर नहीं होता, दोनों एक दूसरे से ज्यादा हसीन हैं। मेरे ख्याल में उनको बारी बारी जगाओ, फिर देखो अगर शहजादी ज्यादातर इश्क का ख्याल करे तो शहजादी ज्यादा हसीन है। जिन और परी ने ये तस्फिया मंजूर कर लिया। जिन ने शहजादी को गहरी नींद सुला दिया और परी ने मच्छर बनकर शहजादे के होंठ पर काटा। वो घबराकर उठ बैठा और फिर अपने बराबर एक हसीन नौजवान औरत को लेटा हुआ देखकर मुतअज्जिब हुआ और दिल में सोचने लगा कि शायद वालिद मेरी शादी इससे करना चाहते हैं और इसीलिए मेरे पास लाई गई है, मैं उसको देख लूं। फिर उसने शहजादी को देखा और हजार जान से उस पर आशिक हो गया और अफसोस करने लगा कि मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ जो ऐसी हूर जमाल लड़की से शादी करने से इनकार कर रहा हूँ। सुबह को ही वालिद के पास इत्तला भेज दूंगा कि रात को आपने जो औरत मुझे दिखाई है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद बेताब होकर चाहा कि उसको खूब प्यार करूँ, लेकिन इस खौफ से रुक गया कि कहीं वालिद साहब छुपकर मेरी इन हरकत को न देख रहे हों। लेकिन नज़र एक लम्हा के लिए शहजादी के चेहरे से न हटाई और निगाहों ही निगाहों में उसके रुख रोशन की बुलाएं लेता रहा। फिर अपनी अंगूठी शहजादी को पहना दी और उसकी आप पहन ली। इतने में परी ने शहजादे को गहरी नींद सुलाकर चीन की शहजादी को जगा दिया। शहजादी ने उठकर एक नौजवान हसैन को पहलू में देखा, बड़ी परेशान हुई, लेकिन कमरुज़्ज़मान के जमाल बेमिसाल को देखकर उस पर हजार जान से आशिक हो गई और दिल में सोचने लगी कि मैं बड़ी नादान हूँ कि वालिद उस नौजवान से मेरी शादी करना चाहते हैं और मैं इनकार करके कैद की मुसीबत उठा रही हूँ। फिर अपनी अंगूठी को बदला हुआ देखकर इसको मजीद यकीन हो गया कि यही मेरा होने वाला शौहर है। शहजादी ने कमरुज़्ज़मान को जगाना चाहा, लेकिन वो परी की सिलाई गहरी नींद सो रहा था, बेदार न हुआ। जोश जज्बात में बेख्तियार होकर उसने शहजादे को चूम लिया। जिन ने इस वक्त शहजादी को भी सुला दिया। फिर दोनों जिनो परी जाहिर हुए। परी कहने लगी कि तुमने देख लिया, मेरा शहजादा ज्यादा हसीन है। जिन खामोश हो गया और शहजादी को चीन में उसके मकान पर पहुंचा दिया। सुबह को जब शहजादा बेदार हुआ तो शहजादी मौजूद न थी। उसने ख्याल किया कि वालिद ने उसे वापस बुला लिया होगा। फिर मुंह हाथ धोकर तिलावत में मसरूफ रहा। जब अपने मामूलात ख़त्म कर चुका तो गुलाम को बुलाया और इस औरत की निस्बत दरियाफ्त किया जो रात को उसने देखी थी। गुलाम ने हैरान होकर कहा कि शायद आपने ख्वाब देखा है, क्योंकि यहाँ तो ना कोई आया ना गया। शहजादे ने उसको धमकाया तो उसने कहा, मैं जाकर पूछता हूँ, मुमकिन है मेरी ला इल्मी में रात बादशाह ने किसी को भेजा हो। चुनाचे वो शाह ज़मान की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, शहजादे ने एक औरत की निस्बत से मुझसे दरियाफ्त फरमाया है जो रात को उनके पास लाई गई थी। मुझे तो कोई इल्म नहीं किया हुजूर ने किसी को भेजा था। शाह ज़मान भी मुतअज्जिब हुआ और उसी वक्त वजीर आज़म को बुलाकर दरियाफ्त हाल के लिए कमरुज़्ज़मान के पास भेजा। वजीर ने वाक़यात पूछे तो उसने जो माजरा देखा था बयान कर दिया। वजीर ने कहा कि आप इत्मीनान से गौर फरमाइए, मुमकिन है ख्वाब से वाक़यात हाफ़ज़ा पर रह गए हों, और जहाँ तक मुझे इल्म है आपके पास कोई लड़की नहीं लाई गई, बल्कि हकीकत तो ये है कि आपके इनकार पर अब तक बादशाह की नज़र इंतखाब भी किसी लड़की पर नहीं पड़ी है। शहजादे ने अपनी उंगली की बदली हुई अंगूठी दिखाई
उसकी वजह कता ऐसी अजीब थी कि इस जजीरे में उससे पेशतर ऐसी अंगूठी देखी ही नहीं थी। ये अंगूठी देखकर वजीर भी हैरान रह गया। चुनाचे बादशाह को बुलाया। शाहजमान ने तमाम हालात सुने। अंगूठी देखी तो वो शशो पंज में पड़ गया। सब परेशान थे कि ये क्या इसरार है। कमरुज़्ज़मान ने वजीर की मार्फत अपने वालिद की खिदमत में अर्ज कर दिया, अगर वो लड़की न मिली तो मेरी जिंदगी दुश्वार है। मेरा अब इसके बगैर जीना बेकार समझता हूँ। शाहजमान ने शहजादे को इत्मीनान दिलाया कि हम इसे जरूर तलाश करेंगे। फिर इसको लबे दरिया एक कसर में भेज दिया और खुद वजीर आजम से मशवरा करने लगा। दूसरी तरफ चीन में सुबह को शहजादी उठी तो शहजादे को न पाकर बेकरार हो गई। कनीज़ों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कानों पर हाथ रखे और अर्ज किया कि आप कैसी बातें फरमाती हैं, यहाँ किसकी मजाल है कि कदम रख सके। हमारा ख्याल है कि आपने ख्वाब देखा है। शहजादी ने कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो। ये अंगूठी देखो, क्या ये मेरी है? कनीज़ें अंगूठी देखकर हैरान हुईं। चुनाचे उन्होंने जाकर मलका चैन को सारा हाल सुनाया। मलका दौड़ती हुई बेटी के पास आई और हालात सुनकर परेशान हो गई। बादशाह को बुलाया। उसने कहा, यह सब दिमागी खराबी का असर है, उसकी चंद रोज़ निगरानी करो। मैं अतिब्बा को बुलाता हूँ। तबीब आए, दवाएं तजवीज़ हुईं, लेकिन शहजादी बराबर इसरार करती रही कि आप ख्वाह मखा मुझे बीमार बना रहे हैं, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। लेकिन किसी ने उसकी बात पर तवज्जो ना दी। 2-4 रोज़ बाद शहजादी का गुस्सा बढ़ गया और वो कनीज़ों को मामूली मामूली बातों पर मारने लगी। वालिदैन को उससे और भी कभी शुबा हो गया कि उसका दिमाग ख़राब हो गया है। हालांकि इसकी ये झंझलाहट पैदा शुदा हालात का कुदरती नतीजा थी। बादशाह ने बहुत इलाज कराए, लेकिन इसकी हालत में कोई कमी नहीं हुई। मजबूर होकर उसका आम ऐलान कर दिया कि जो कोई शहजादी का इलाज करके तंदुरुस्त कर देगा, उसके साथ मैं अपनी लड़की की शादी कर दूंगा और वही मेरा वारिस तख्तो-ताज होगा। लेकिन नाकामी की सूरत में कत्ल कर दिया जाएगा। बहुत से मालिज लालच में आए, लेकिन कत्ल कर दिए गए और उनके सर किला की दीवारों पर लटका दिए गए ताकि इलाज करने वाले अंजाम का अंदाज़ा कर लें। शहजादी की दाया का लड़का रिजाई भाई इन दिनों कहीं बाहर गया हुआ था। जब घर पहुंचा तो तमाम हालात मालूम हुए। ये भी सुना कि शहजादी पागल हो गई है और किसी को इसके पास जाने की इजाज़त नहीं है। उसने अपनी माँ से कहा कि मैं अपनी बहन को एक दफ़ा देखना चाहता हूँ। मुझे वो अपनी हकीकी बहनों से ज़्यादा अजीज़ है। जब से उसका हाल सुना है, तबीयत परेशान है। माँ ने पहले तो मना किया, लेकिन उसके मजबूर करने पर एक रोज़ माँ उसे जनाना लिबास पहनाकर अपने साथ ले गई। शहजादी ने देखते ही पहचान लिया और बड़ी मोहब्बत से कहने लगी, आओ मेहरबान भाई, अच्छे हो। मेहरबान ने रोकर हाल दरियाफ्त किया तो शहजादी ने तमाम वाक़यात बयान किए। अंगूठी दिखाई, फिर कहने लगी कि मुझे अच्छी भली को उन लोगों ने खामखा दीवाना मशहूर कर दिया है। मर्ज़बान ने बहन को तसल्ली दी और कहा कि तुम ज़ब्त व सब्र से काम लो, मैं तुम्हारे शहजादे की तलाश में जाता हूँ। या तो उसे ढूंढ निकालूंगा या अपनी बहन की खिदमत गुजारी में जान दे दूंगा। वहाँ से माँ के साथ फिर वापस आया और सामान सफ़र बांध कर नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गया। मेहरबान मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों में घूमता फिरता रहा, लेकिन कोई खबर ऐसी सुनने में ना आई जिससे वो मंजिल का सुराग लगा सकता। उसने अपनी तबी जहानत से अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया था कि जिस शख्स को शहजादी ने देखा है वो किसी मुल्क का शहजादा है। शहजादी के हाथ में जो अंगूठी थी वो बहुत कीमती थी और उसके नगीने में कुछ मखसूस निशानात भी ऐसे थे जो अक्सर बादशाहों के यहाँ ही देखे जाते हैं। इसके अलावा मेहरबान को यकीन था कि जिस किस्म के गैर मामूली वाक़यात ने शहजादी को दीवाना मशहूर कर दिया है, उससे मिलने जलने के लिए इस शहजादे के हालात भी मशहूर होंगे, जिसकी उसे तलाश थी। 3-4 माह की जद्दोजहद के बाद वो एक रोज़ ऐसे जजीरे में पहुंचा जहां इसने शहजादा कमरुज़्ज़मान के हालात सुने और समझ गया कि मैं सही जगह पर आ गया हूं और अब कामयाबी यकीनी है। चुनाचे वहां से वो जजीरा चंदान की तरफ रवाना हो गया। हफ्तों बुरी व बहरी सफ़र करता हुआ जजीरा मज़कूर में पहुंचा, लेकिन जिस वक्त उसका जहाज़ किनारे पर पहुंचने वाला था, एक मौज बेपनाह ने उसे पाश पाश कर दिया। कमरुज़्ज़मान इस वक्त अपने साहिली महल में ही था और उसके वालिद शाहज़मान भी बेटे के पास बैठे हुए थे। इस जहाज़ की तबाही का इल्म जब उन्हें हुआ तो नेक नफ्स बादशाह ने उसी वक्त दरिया में कश्तियाँ डलवा दें और जितने आदमियों को बचाया जा सकता था बचाया। खुशकिस्मती से उन्हीं में मेहरबान भी था। बादशाह ने अज़राह हमदर्दी उन लोगों को इस महल में ठहरा दिया जहाँ कमरुज़्ज़मान मुकीम था। मेहरबान ने शहजादे को देखा तो दिल में दुआ करने लगा कि खुदावंद मेरी मेहनत बार आवर हो और ये वही शहजादा है जिसकी मुझे जुस्तजू है। समंदर में गिरने के सदमे से जब ये लोग बहाल हो गए तो कमरुज़्ज़मान दरियाफ्ते हाल के लिए उनके पास आया
और सबसे खैर व आफियत दरियाफ्त की तो मेहरबान ने बहुत ही फसाहत व बलागत से गुफ्तगू की और शहजादे को अपने सफ़र के दिलचस्प वाक़यात सुनाए। कमरुज़्ज़मान इससे बहुत खुश हुआ। फिर चलते हुए मुसाफहा के लिए हाथ बढ़ाया तो मेहरबान ने शहजादी बदरुल बदूर की अंगूठी उसके हाथ में पहचान ली और दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरी मेहनत ठिकाने लगी और मंजिल मकसूद तक आ पहुंचा। शहजादे की मेहरबान की बातें ऐसी पसंद आईं कि उसको वहीं ठहरा लिया। चंद रोज़ में मेहरबान ने मुलाजमों की ज़बानी तमाम वाक़यात मालूम कर लिए और पूरी तस्दीक हो गई कि यही वो शहजादा है जिसके लिए रज़ाई बहन दीवानी मशहूर हुई है। दौरान क़याम में मेहरबान ने कमरुज़्ज़मान को बहुत अजीब व गरीब हिकायात सुनाए और आहिस्ता आहिस्ता उसका एतमाद हासिल कर लिया। आखिर एक रोज़ तन्हाई में कमरुज़्ज़मान से शहजादी बदरुल बदूर का हाल बयान किया और उसकी अंगूठी की तफसीलात बताएं। कमरुज़्ज़मान की शिद्दत जज्बात मेहरबान से लिपट गया और शहजादी की खैरियत मालूम की। उसने बताया कि वो तो आजकल दीवानगी की हालत में है और हर वक्त तुम्हारे लिए बेकरार रहती है। उसके लिए वालिद शाह चैन ने ऐलान कर दिया है कि जो कोई शहजादी का इलाज करेगा उसके साथ शहजादी की शादी कर दूंगा और अपना वारिस सल्तनत बना दूंगा। कमरुज़्ज़मान अपनी महबूबा की खबर मालूम करके बेहद मसरूर हुआ। उसकी हर वक्त की पजमर्दगी जाती रही। जिंदगी के लिए नए वलवले पैदा हो गए। शाह ज़मान असल हालात सुनकर बेहद खुश था कि उस मुसाफिर की आमद ने लड़के की काया पलट दी। चुनाचे वो मेहरबान का पहले से ज़्यादा ख्याल करने लगा। एक रोज़ मेहरबान ने कमरुज़्ज़मान से कहा कि चीन चलने की फ़िक्र कीजिए वरना बदरुल बदूर जिंदा नहीं मिलेगी। शहजादा सुनकर ये कहने लगा कि मुझे खुद एक एक लम्हा भारी हो रहा है, लेकिन डरता हूँ कि वालिद इजाज़त नहीं देंगे। तुम ही बताओ कि क्या करूँ। मेहरबान ने कहा कि आप यहाँ से सैर व शिकार के बहाने निकल चलिए, हमराहियों को रास्ता में छोड़ देंगे और हम दोनों चैन रवाना हो जाएंगे। राह में कुछ ऐसे निशानात पैदा करेंगे कि तलाश करने वाले समझेंगे कि हम किसी दरिंदे का शिकार हो गए हैं। कमरुज़्ज़मान ने इस तजवीज़ को पसंद किया और वालिद से शिकार की इजाज़त लेकर शहर से रवाना हो गया। जंगल में पहले से ही चंद घोड़ों का इंतज़ाम कर लिया गया था। चुनाचे कमरुज़्ज़मान और मेहरबान मुलाजमीन से अलग होकर चीन की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक फालतू घोड़े को ज़िबा करके अपने चंद कपड़े उसके खून में तर करके डाल दिए और घोड़े को दूर एक जगह छुपा दिया ताकि ताक़ुब करने वाले मायूस होकर लौट जाएं। ये दोनों मंजिल बमंजिल तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे थे। शौक का ये आलम था कि पर लगाकर उड़ जाएं। गर्ज तवील और थका देने वाला सफ़र ख़त्म हुआ और कमरुज़्ज़मान मेहरबान के साथ चीन पहुंच गया। कमरुज़्ज़मान बेताब था कि अभी महबूबा तक जा पहुंचूं, लेकिन मर्ज़बान ने समझाया कि हमको काम कायदे से करना चाहिए ताकि कोई उलझन पैदा ना हो। पहले बदरुल बदूर को इत्तला देता हूँ कि शहजादा आ गया, फिर आप तबीब बनकर उसका इलाज करने जाइए, वो तंदुरुस्त हो जाएगी और बादशाह हस्बे वादा उसका अक्द कर देगा। इस तरह मकसद हासिल हो जाएगा। कमरुज़्ज़मान ने कहा, बेहतर है, जिस तरह तुम कहोगे वैसा ही करूँगा। कमरुज़्ज़मान को एक आरामदेह सराय में ठहरा कर मेहरबान अपने घर गया और माँ से कहा कि आप बहन से जाकर कह दीजिए कि मैं आपके शहजादे को ले आया हूँ और खुदा का शुक्र है कि अपनी बहन से सुरखरू हुआ। कल इसको बसूरत हकीम भेजूंगा, तुम तंदुरुस्त हो जाना। बतौर निशान वो तुम्हारे पास अंगूठी भेजेगा। दरीचा से उसको देखकर मजीद इत्मीनान कर लेना चाहिए, फिर खुदा चाहे बादशाह हस्बे मंशा निकाह कर देगा। दाया से ये खुशखबरी बदरुल बदूर को दी। वो निहायत खुश हुई और इसी वक्त सरबजूद होकर खुदावंद करीम का शुक्र ये अदा किया। दूसरे रोज़ हस्बे तजवीज़ कमरुज़्ज़मान तबीब बनकर शाही महल में पहुंचा और इत्तला कराई कि मैं शहजादी का इलाज करना चाहता हूँ। अफसर महल्लात ने उसकी नौ उम्री और खूबसूरती को देखकर समझाया कि साहबजादे क्यों अपनी ज़िंदगी से बेजार हो रहे हो। बहुत से बड़े बड़े तबीब आए और इसी हसरत में कत्ल किए गए। मुझे तुम्हारे हुस्न जवानी पर रहम आता है, खुदा के लिए वापस जाओ और उस ख्याल खाम को छोड़ दो। लेकिन शहजादा बज़िद रहा। मजबूर होकर अफसर मुतलका ने वज़ीर आज़म और शाह चैन को इत्तला दी कि 9 उम्रे हकीम आया है और शहजादी का इलाज करना चाहता है। बादशाह ने हुक्म दिया कि बुलाओ। कमरुज़्ज़मान को बादशाह के सामने पेश किया गया। शाह चैन ने कहा कि तुमने तमाम शराइत इलाज मालूम कर ली हैं। शहजादे ने कहा, जी हाँ, अगर मैं नाकाम रहा तो आप शौक से मुझे कत्ल करा दें। बादशाह ने कहा, तुम बहुत कम उम्र तबीब हो, मैं मशवरा देता हूँ कि कल तक मजीद गौर कर लो। कमरुज़्ज़मान ने कहा कि ये आपकी मेहरबानी है जो मुझे नसीहत फरमाते हैं, लेकिन मैं जो फैसला कर चुका हूँ वो बदल नहीं सकता। शाह चैन ने कहा, अच्छा तुम्हारी मर्जी, आओ मेरे साथ चलो। फिर वो कमरुज़्ज़मान को लेकर उस जगह आया जहाँ शहजादी मुक़य्यद थी और एक कमरे में बिठाकर बादशाह बदरुल बदूर की हालत देखने अंदर गया
इस वक्त शहजादी बहुत सख्त दौरे में थी। जो करीब, मैं ये लिफाफा देता हूँ, आप शहजादी को देकर थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दीजिए। इसमें एक नायाब तरीका है और मुझे यकीन है कि अभी शहजादी तंदुरुस्त हो जाएगी। बादशाह इस तबीब का पुख्ता इरादा और यकीन देखकर बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि मुमकिन है ये कोई बड़ा माहिर हो, इसीलिए इसको अपने ऊपर इतना भरोसा है। इस दौरान बदरुल बदूर ने अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो शहजादे को पहचान लिया कि ये वही नौजवान है जो कुछ लम्हे मेरे पास रहा था, लेकिन वो दिल पर ऐसा गहरा असर छोड़ गया कि बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर काबू रखा। इतने में बादशाह वो लिफाफा लेकर अंदर आया और शहजादी के हाथ में देकर कहा कि हम तमाम बाहर जाते हैं, तुम उसको खोल कर देखो। फिर वो खादमों के साथ बाहर चला आया। शहजादी ने बड़े शौक से लिफाफा खोला। सामीन किराम, इससे आगे क्या हुआ, कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अस्सलामु अलैकुम।